Good morning, class 12. In business study class, today's our topic is financial decisions. Basically, एक financial manager को, right? Basically, the decision which are taken by the financial manager is investment decision, financing decision, and dividend decision. And today's our topic is investment decision. Basically, investment decision means money invested in assets, right? How much money invested in assets that the business can earn the highest profit, right? So the profit or the investment, profit or the cost of investment is to be compared in the investment decision, right? So basically the amount invested in assets is to be compared the profit which are to be earned from the assets. इन्वेस्टमेंट बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर को तीन तरह के डिसीजन लेने होते हैं बेटे, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन और एक डिविडेंड डिसीजन. आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या है कि जब एक फाइनेंशियल मैनेजर टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ एसेट्स को परचेज करने, लॉन्ग टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स को परचेज करने के लिए जब एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि it will be beneficial or not, so the cost of assets and the profitability are to be compared in investment decision. Basically in investment decision are to be divided in two parts, long term investment decision and short term investment decision. First of all, long term investment decision. Long term investment decision means the decision which are to be taken for the purchase of long term assets. Long term assets को purchase करने के लिए जब एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है, देन दिस डिसीजन विल बी नोन एज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सपोज अगर हम एक कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं एंड द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज रुपीज 10 लाख, राइट? देन द फाइनेंशियल मैनेजर इज टू बी कंपेयर whether the money is to be invested on the machinery rupees 10 lakh, whether the firm earn the profit more than cost. So the long term investment decision means when the financial manager take the decision for the money invested in the long term assets. long term assets में money invest किया जाए या नहीं किया जाए. अगर हम कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, और उसकी कॉस्ट के अगर हम 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट भी करते हैं तो क्या वो हमें 10 लाख रुपीज से ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करेगी. सो दिस डिसीजन विल बी नोन एज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बेसिकली इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन costs are to be compared with profitability. So cost and profitability are to be compared in the long term investment decision. Then the short term investment decision. Short term investment decision means when the financial manager take the decision for the money invested in the current assets, just like the money invested cash, how much cash to be kept by the business, money invested in stock, money invested in debtors, right? So when the decision are to be taken for the money invested in the current assets known as the short term investment decision. And in short term investment decision, profitability and liquidity are to be compared. Profitability of the assets and liquidity of the assets are to be compared. मतलब current assets के लिए कितना कैश बिजनेस के अंदर रखा जाना चाहिए, ये ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए. If more, then it's also a harmful situation. If less, then the manager cannot manage his day-to-day expenditure. So liquidity means cash position. Cash position are to be compared with the profitability in the short-term investment decision. Now the concept is factor affecting investment decision. ऐसे कौन से फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कंपेयर करते हैं या इफेक्ट करते हैं? नंबर 1, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है. सो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर कोई हम किसी भी प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट करते हैं, राइट, देन द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड. अगर हम उसमें मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन उस प्रोजेक्ट से कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, राइट. सो कैश इनफ्लो शुड बी मोर देन द कैश outflow. So cash flow position plays a very important role. So cash flow of the project, on the basis of cash flow of the project, the investment decision are to be taken. Then the rate of return. Rate of return means rate of income.
अगर हम किसी प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो सेकंड फैक्टर इफेक्ट करेगा वो है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मींस मनी अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ज्यादा है, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं उससे रेट ऑफ रिटर्न हमारी हायर है, देन द डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट कैन बी टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। देन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, right? Number third factor which are affect the investment decision is that is investment criteria involved. There are many criteria of investment involving investment long term assets, right? The funds involved long term assets में या short term assets में कितने फंड्स इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इसी के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो, ये सब बातें माइंड में रखनी पड़ती हैं, राइट? सो व्हेन वी वांट टू इन्वेस्ट द मनी into the assets or any particular project, so the cash flow position, the rate of interest or the rate of return should be kept in mind. So these are the three factors which are affecting the investment decision. सबसे पहले cash flow position, it means cash comes in are to be compared with cash goes out, right? Then the rate of return, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें कितनी इनकम अर्न होती है, द रेट ऑफ रिटर्न प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द इन्वेस्टमेंट कैन बी, द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी टेकन। Then the investment criteria involved, right? So if a financial manager want to invest their money in a long term assets or in a particular project, so some point kept in mind. Number one, the rate of return. Number two, cash flow, right? Number three, the rate of interest. So these three things kept in mind when the investment criteria is to be made by the investors or by the financial manager. So these three factors affecting the investment decision, right? Now the second point is short-term decision. Short-term investment decision, it means money invested in current assets or current liability का जो difference होता है, money invested in working capital, राइट? डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितना कैश इन, बेसिकली द शॉर्ट टर्म डिसीजन मींस दैट द डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए लिक्विड फॉर्म में एक बिजनेस को कितना कैश अपने पास रखना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल। डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ कैश, राइट? तो कितने अमाउंट का कैश बिजनेसमैन को अपने पास रखना चाहिए, वो डिसीजन हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है। इसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। द मोर वर्किंग कैपिटल इज आल्सो क्रिएट ए हार्मफुल सिचुएशन। लेस वर्किंग कैपिटल, अगर हम ज्यादा लेस लिक्विडिटी रखेंगे, कम वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो भी हार्मफुल है, ज्यादा रखेंगे तो भी हार्मफुल है, राइट? सपोज अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा मींस लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा, बिजनेस के पास कैश ज्यादा पड़ा हुआ है। सो अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा, इट मींस increases in liquidity, cash position ज्यादा, liquidity means cash position, right? Liquidity means cash in hand. तो अगर हमारी वर्किंग कैपिटल अगर हम ज्यादा रखते हैं तो इसका मतलब हम कैश को ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, कैश हमारे पास, कैश इन हैंड हमारे पास ज्यादा होता है। तो जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा कैश हम अपने पास रखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। सो मोर वर्किंग कैपिटल इक्वल टू इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड बट लेस प्रॉफिटेबिलिटी। सो अगर हम रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैश अपने पास रखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम रिक्वायरमेंट से कम कैश अपने पास रखते हैं, इट मींस वर्किंग कैपिटल को अगर हम लेस कर देते हैं, तो द फाइनेंशियल मैनेजर फेसिंग द प्रॉब्लम्स टू बियर द डे टू डे एक्सपेंसेस। सो गुड फाइनेंशियल मैनेजर रिक्वायर्ड, यानी कि उतना कैश अपने पास रखता है, उतनी लिक्विडिटी या उतना वर्किंग कैपिटल अपने पास रखता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। इफ देयर इज ए मोर देन इट्स आल्सो क्रिएटिंग ए हार्मफुल सिचुएशन, इफ देयर इज ए लेस देन आल्सो क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर फॉर फेसिंग द डे टू डे एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ investment decision from the financial decision. Basically there are three decision: investment decision, financing decision and dividend decision. आज हमने सारा investment decision किया. So you have to read it very carefully and prepare it, right? Thank you.